हेलो बच्चों, आई होप आपका पैटेक्स का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा. सो वी आर हियर प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम. This is the first question. 4 children were asked to engage force due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. The correct arrangement is, यहाँ पे हमें decreasing order में हमें बताना है that कौन सा friction पहले आएगा in decreasing order. Means पहले highest friction, then lesser, then least. Okay. So here the answer is C. Static friction, sliding friction and rolling frictions, because static friction has the highest friction. Malaria is caused by protozoa, virus, algae and bacteria. So the answer is protozoa. Malaria is caused by the protozoa. उस protozoa का नाम है Plasmodium. Plasmodium, it is a protozoa which live in a female Anopheles mosquito. Next question is, PCRA stand for Public Conservation Research Association, Petroleum Conservation Research Association, Public Council of Research Association and Partial Counting Remaining Amendment. So the answer is Petroleum Conservation Research Association. 2,4-D is a pesticide, insecticide, fungicides or weedicide. So 2,4-D, it is a weedicide. Fifth question is, which of the following is obtained from coal tar? And the options are petrol, coke, air, naphthalene balls. Answer is naphthalene balls. Which of the following are contact force? Friction force, gravitation force, magnetic force and muscular force. Here students, we know that gravitational and magnetic force, they both are non-contact force. Contact is not necessary for exerting their forces. The remaining are friction force and muscular force, that is 1 and 4th, and 1 and 4th is given in C. So the correct option is C. Spirogyra is an algae, a fungi, a protozoa, a bacteria. Student, you have seen the stagnant water in which the green, it is covered with completely green color. So this green color organism is none other than the algae, that is Spirogyra. So Spirogyra is an algae. Ignition temperature is lowest temperature to catch fire, higher temperature to catch fire, any temperature, none of these. So students, if we want to ignite any substance, if we want to burn any substance, it has the particular temperature. जब तक वो उस temperature पे नहीं पहुंचेगा, the substance will not start burning. So that temperature at which, the lowest temperature at which the substance will catch the fire is known as its ignition temperature. So answer is A. Right answers of the following question. Now from here the section B has been started. First question of section B is, why oil is added while making pickles? So what happens students, when we add oil in the pickle, it just cut off the air, the entry of air into the pickles. जो air है एक layer बना देता है जिसकी वजह से air is not able to enter that particular area. So what will happen? It will retard the growth of microorganism. It will not allow microorganism to grow over there. So oil make the layer above the pickle, so it cut off the entry of air, thus
prohibiting or retard the growth of microorganism. Next question. State any 4 characteristics of an ideal fuel or good fuel. So the first question is, the first characteristic is that it should have the high calorific value. It means it should produce more energy in little amount of the fuel. Second, it should be easily transported. As such, students will see the hydrogen has the highest calorific value, but as it is not easily transported, so we cannot consider it as an ideal fuel. It should give large amount of energy. So these are the some characteristics, that it should have the high calorific value, it should be easily transported, and it should give the large amount of energy. 11th, give scientific reason petroleum is called black gold. So students, petroleum is used in varieties of industries, varieties of purpose, and it has the very high value. For example, it is used widely in industries, and most of the important, it is used in transportation. It is also used in making of different items like detergents, plastics, polythene, road making. So because of its highly used, it is termed as a black gold. Calculate the pressure when a force of 200 Newton exerted on area of 10 meter square and 5 meter square. So students, if we see, the formula of pressure is equal to force upon area. Okay. Now here in first condition, the area is 10 meter square and force is 200. So 200 Newton is force and 10 meter square is area. Answer is going to be 20 Newton meter per square. In B, force is same, that is 200 Newton, and area is 5 meter square. So answer is going to 40 Newton per meter square. Next question. Explain the formation of curd from the milk. Here, first understand that milk has the protein which is known as casein. Now, when there is the growth of
lactobacillus bacteria in the milk. What this lactobacillus bacteria do? Actually, milk also contain the sugar which is known as lactose. Now here, what this lactobacillus will do? This lactose, it is going to feed on this lactose and then it is converted into lactic acid. That is why it is sour in taste. Second thing, we see the curdling in the milk. So वो curdling कहाँ से आता है? This casein protein gets coagulate and form curdle. So there is two different steps. That first, lactobacillus will convert lactose into lactic acid, and because of this sourness, what happened, that this casein protein gets coagulated. That is why we see the curdling in the milk. So this is how the formation of curd takes place from the milk. Lactose will convert milk into the curd with the help with these two techniques, and it is known as fermentation. 14th, write the answers of the following questions. Here, section C. Why do you think the removal of weed is essential? Write any one method to control weeds. So here, students, what are the weeds? Weeds, they are the unwanted plants which are grown in the fields. Now nobody wants the unwanted thing, right? Why? Because these weeds will compete for the nutrients with the crops. So first, what are the weeds? Okay, weeds are unwanted plants which competes with crop for nutrients and water. So we actually need crops, we don't want weeds. Okay, so we have to remove it. So there are different techniques, manual techniques also, and use of weedicides also, by which we can remove the weeds. So weedicides such as 2,4-D can be used to remove it. Next question is 15th question. Give the reason for the following. The foundation of high-rise building are wide and the walls of dams are made thicker at the bottom. यहाँ पे students, you have to understand first that what is the pressure? Pressure is equal to force upon area. Means here, if area is going to be more, जितना एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर एक्सर्ट जो करेगा वो कम करेगा. प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस इफ एरिया इज मोर, एंड इफ एरिया इज लेस देन pressure is going to be exerted more. So in first condition, if we'll see that they are asking the foundation of high rise building are wide. Now the buildings are very high rise. Okay, so what will happen? The pressure exerted from this building can sink the building into the ground. So what they do, suppose this is the building and this is here, it is the foundation. Now if it is the high rise building and pressure exerted on the ground is more, and if this area is very less, what will happen? This building is going to sink into the ground. So to prevent the sinking of the building, to limit the pressure which is exerting on the foundation, they made the foundation broad. To
prevent the building from sinking it into ground. The foundation of high-rise buildings are wide. Now, second is the walls of dams are made thicker at the bottom. For here, the next characteristics of pressure is that as we go deep into liquid, pressure is more. So if we see the dam, here it is the water. जितना depth में हम जाएंगे, as we go in the depth, here the pressure is going to be increase on the dam of the water. So that is why, to prevent the dam from the pressure exerted in the liquid, the dam is made wider at the bottom. As pressure increase with increase in depth, the walls of dams are made thicker at bottom to prevent the dam from pressure exerted at the depth. Next question. It is observed at petrol pump and airports that hydrocarbon fire extinguisher are used instead of soda acid fire extinguisher. Give reason. Now students, जब soda acid fire extinguisher use करते हैं, so that have some water in it. Okay, there is a usage of water in soda acid fire extinguisher. So what will happen if water is used in such type of fires? Water, it is going to be settled down and oil is going to be float on the water, because जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. जब तक ऑयल वाटर पे फ्लोट करेगा, फायर वैसे की वैसे ही रहेगी, फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी. दैट इज वाई व्हाट दे यूज हाइड्रोकार्बन फायर एक्सटिंग्विशर इन विच CO2 is released under high pressure in the formation of foam which cut off the oxygen and it settle down on the fire. Okay, so the points which we'll write here, that soda acid fire extinguisher uses water, thus oil will float on water, will not able to extinguish fire, thus hydrocarbon fire extinguisher are used as they release CO2 in foam based
form. Okay. Next, why sound cannot be heard on the moon? How do astronauts talk to one another on the surface of the moon? Now students, you know that sound needs medium to travel. Okay, it needs particle. When particle vibrate, this vibration are passed to another particle, and so the sound moves from one particle to another. So sound needs medium, but at moon or in space there is vacuum. Okay, it is near to the vacuum. That is why we cannot hear sound on the moon. So the first point is going to be sound needs medium to travel. At moon there is vacuum, thus we cannot hear sound on the moon. Now astronauts, how astronauts hear? So astronauts have special helmets which have specially designed machine, or you can say device, specially designed device which convert sound waves into radio frequencies. So astronauts have these special helmets which contain this special device which converts sound waves into the radio frequency. Thus astronaut can hear the speech of one another. Next, question number 18. Match the organisms in column A with their action in column B. Let's see the organism. It's bacteria, rhizobium, lactobacillus, yeast, a protozoan and a virus. So if we'll see the bacteria, here the bacteria can be connected to E. So for first the answer is E, that is causing cholera. Rhizobium, it is the bacteria which fix the nitrogen. So for second the answer is A. Third, lactobacillus. Yes, lactobacillus is also the bacteria which help in formation of curd, or we can say setting of curd. So third one is B. Then yeast. Okay, so yeast, it is the fungi which helps in baking of a bread. So here answer is C. And fifth one is a protozoan. Protozoan, it causes the malaria. The name of that protozoa is Plasmodium. Here answer is D. And last but not the least, it is sixth, that is virus. It causes the AIDS, because virus will not produce antibodies. They are, the virus का आ जाएगा F. So answer is 1 E, second A, third B, fourth C, fifth D and sixth is F. 19. Imagine that all the exhaustible natural resources are exhausted by human activities. Do you think survival of living beings would be possible? If yes, why? If not, why not? So students, exhaustible natural resources, in this we can include the fossil fuels. We can include fossil fuels like coal and petroleum, which are actually very important for the activities like transportation, generation of electricity. So actually it is not possible
to sustain without these kind of natural resources. But another natural resources, let's say forest. Okay, forest is known as the lungs of the earth. They are the major producers of oxygen. From the forest also we get the timbers and different materials. So if we see, and even forests are helpful in bringing the rain. So if all the exhaustible natural resources will get exhausted, it is impossible to live. So let's just state the points. First, fossil fuels like petroleum, coal, natural gas are utilized majorly in activities like transportation, thermal power stations, in automobiles, cooking gas, etc. These are widely used. Okay, and if we say about the natural resources for forest, it is the major producer of oxygen, helps in bringing rain, many industrial products. It is responsible for many products like timber, resins, wood. Wood is also used in textile industry. The rayon type of material is made out of wood pulp. So it is widely used. So the answer is going to be that no, we cannot survive without, if all the exhaustible natural resources will get exhausted, we will not able to survive because of the following reasons. Next, what are the food preservatives? Explain some common food preservatives. So students, food preservatives, they are the chemicals which are used so that food is not spoiled by the microorganisms. Food preservative is chemical which avoid the growth of microorganisms. Some common food preservative is salt. Fishes are also salted out. Fishes are also kept. Then pickles, dry tamarind, amla, they are just salted out and they are preserved. Second, even sugar, it is used in jams and jellies. Then some other preservatives are chemical preservatives are sodium
benzoate and sodium metabisulfite. If we say about the common food preservatives at home, so we can say salt, oil, sugar, these are used as a common preservatives. And if we'll say the chemical preservatives, so these are some name of chemical preservative, that is sodium benzoate and sodium metabisulfite. The next is fill in the blanks. Burning of wood and coal causes dash of air. So here what will come? It causes the pollution of air. B, a liquid fuel used in home is kerosene. Fuel must be heated to its ignition temperature before it start burning. So ignition temperature, it is the lowest temperature at which the substance will start burning. It will catch the fire. Fire produced by oil cannot be controlled by water, because being oil is going to float on the water and fire will not extinguish. The last is explain nitrogen cycle and draw a schematic diagram of nitrogen cycle. So students, here the schematic diagram is there for the nitrogen cycle, and you have to explain these points as well directly in the paper. So what happened? Nitrogen cannot be fixed directly by the plant. Okay, they cannot fix the nitrogen directly, they cannot uptake the nitrogen directly. So what happened? This nitrogen is fixed by different organisms. Okay, they fix the nitrogen, they convert into the form in nitrates and nitrite, which can be used by the plant. So let's see different process in nitrogen cycle. So first, the nitrogen, it gets fixed. Here the nitrogen is getting fixed from the bacteria. Now these bacteria are the Rhizobium, Azotobacter. These are the some bacteria which fix the nitrogen. I just write which. So Rhizobium, these are the symbiotic bacteria. Azotobacter also help in fixing the nitrogen. Now this nitrogen will be converted into the ammonia, and then this ammonia will convert into the nitrites with the help of nitrifying bacteria. Also then it is utilized by the plant. Now when these plants is eaten by the animal, these nitrogen entered into the food chain. Okay, for example, the herbivore animal is eating the plant, and then some carnivore animal is eating that particular herbivore animal. So likewise, nitrogen is transferring from one level to another level in the form of food chain. What happened? This once again, when any like this is the excreta of animal. If animal dies, if the if the plant dies, if the leaf just get fall down, so what happened? Once again this nitrogen is released into the atmosphere. Once again it is converted into the ammonia, and then the process once again start in the form. Then ammonia will convert into the nitrates, then nitrites, and then once again used up the plant. By the time there are some bacteria which are known as denitrifying bacteria. They are known as denitrifying bacteria. Example of these denitrifying bacteria is Pseudomonas. What these Pseudomonas kind of bacteria do? They are denitrifying bacteria. They release the nitrites, nitrate into the free form, that is in nitrogen. So there are different methods: nitrogen fixation, where nitrogen get fixed; ammonification, where nitrogen is converted into ammonia. So first you will explain about the nitrogen
fixation. Then you will explain about the ammonification. Then you will explain how it enters into the food chain. Then this ammonia is get converted into the nitrites and nitrates, which is utilized by the plant. Then entering nitrogen into food chain. Then last you have to explain about the denitrification. So these are the points you will explain here, and this is the diagram which you are going to draw. I hope you will get the solution and all the answers. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो अब हम देखने वाले हैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x इज इक्वल टू 1/3। आपके x की वैल्यू है 1/3 एंड y की वैल्यू है 2/5। ठीक है, x है 1/3 एंड y है 2/5। तो आपको पूछा है x/y प्लस y/x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, x/y फाइंड करना पड़ेगा। तो x/y, ठीक है, तो ये हो जाएगा x/y की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी x 1/3 अपॉन y कितना है बेटा 2/5। तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 2/5 का 5/2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। तो आपके x/y की जो वैल्यू है, आपके x/y की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/6। तो आपके y/x की जो वैल्यू होगी, आपके y/x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी वो कितना हो जाएगा 6/5। तो x/y की वैल्यू आपको मिल गई और y/x की भी वैल्यू आपको मिल गई। आपको करना है इन दोनों का एडिशन, x/y यानी कि 5/6 प्लस y/x यानी कि 6/5। तो ये होगा 5 5 ज़ार 25 प्लस 6 6 ज़ा 36 अपॉन 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 ये हो जाएगा 61/30। ठीक है, कौन सी चॉइस है बेटा 61/30, बी चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, आपको इसका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन है 5/6 और 11/6, तो 5/6 प्लस 11/6। उसके बाद 4 वाला कौन है, तो ये रहा बेटा 3/4 और -13/4, तो प्लस 3/4 प्लस -13/4। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, तो उसके बाद आपके पास बचा है प्लस, यहाँ पे आपके पास प्लस बचा 1 2 3 4 5 और ये छठा टर्म है। तो 1/2 में कौन बचा है प्लस 1/2 और प्लस यहाँ पे कौन बचा है -5/2। तो ऊपर भी आपके 6 टर्म है, देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 हो गए। ठीक है, अभी अगर आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे तो ये हो गया 11 और 5 16/6। ठीक है, प्लस 3/4 -13/4, तो 3 - 13 ये होगा -10/4। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये होगा प्लस 1/2 -5/2, तो 1 - 5 -4/2। ठीक है, ये कट हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया बेटा -2 हो गया। ये भी कट हो रहा है तो 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, और ये भी कट हो रहा है 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, और ये हो जाएगा -5/2 और यहाँ पे -2। ठीक है, इसको लास्ट में रखेंगे -2 को। पहले देखो 8 2 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा
15, तो 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6 और ये पीछे -2, तो ये होगा 16 माइनस 15 यानी कि 1/6 -2, तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 6 2 ज़ा 12, 1 माइनस 12 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -11/6। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना है बेटा, -11/6। कौन सी चॉइस है बेटा -11/6? सी चॉइस है आपकी -11/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है बेटा 1/5 ऑफ अ नंबर, तो मैं नंबर को x ले लेता हूँ, लेट नंबर बी x। ठीक है, मैंने जो नंबर था उसको x ले लिया, तो 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब 1/5 टाइम्स x ऑफ अ नंबर, ये 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ रिड्यूस्ड बाय मतलब आपने इसके अंदर रिड्यूस किया है कितना, 8/13, तो 1/5 ऑफ अ नंबर 1/5x इज़ रिड्यूस्ड बाय 8/13, तो -8/13 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 24/195। आपको पूछा है देन द नंबर इज़, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको माइनस को अगर इस साइड लाओगे तो ये इस साइड लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1/5x इज़ इक्वल टू 24/195 माइनस इधर आया तो प्लस 8/13। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 195 करना है तो ऊपर नीचे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5x इज़ इक्वल टू, ये होगा 24/195 प्लस 15 8 ज़ा 120/195, तो आपको मिलेगा बेटा क्या, 1/5x इज़ इक्वल टू 120 और 24, ये हो जाएगा 144 अपॉन कितना है बेटा 195। ठीक है, अगर आप इसको कट करते हो तो आपको मिलेगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 4 5 तो 39, तो x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मिली 144/39। अब अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे 3 से कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, आपको आ रहा है आंसर आपका 48/13। ठीक है, आपके x का आंसर आ रहा है 48/13। कौन सी चॉइस है बेटा, चॉइस ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बेटा, तो आपको बोला है सेकेंड स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट से सेकेंड नंबर पे, ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड्स है उसके अंदर, हुज इंटीरियर एंगल्स, जिसके जो इंटीरियर एंगल्स है आर इन द रेशियो 3 5 5 7 4। ठीक है, तो हम लोग रेशियोज़ को x ले लेते हैं, लेट द रेशियोज़ बी x। अगर आपने रेशियोज़ को x ले लिया तो आपके रेशियोज़ हो जाएंगे 3x 5x 5x 7x एंड 4x। ठीक है, लेट द रेशियोज़ बी x, तो आपने रेशियोज़ को x लिया तो आपके रेशियोज़ हो जाएंगे 3x 5x, ठीक है, उसके बाद 5x 7x एंड 4x। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इनका सम क्या बोला है, हुज इंटीरियर एंगल्स, तो ये सारे जो है बेटा वो क्या है, अभी आपके इंटीरियर एंगल्स है। तो आपके किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कहाँ से मिलता है आपको, तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब पेंटागॉन में कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है, तो ये होगा 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 ज़ा 54, कितना हो रहा है 540 डिग्री। मतलब कि आपके ये पाँचों 5 एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा, 540 डिग्री। तो अगर आप इन सबको ऐड करो, 3x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 4x, तो ये कितना होगा 540 डिग्री। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कितना हो रहा है, 5 और 5 10 और 10 20 और 4, आपको मिलेगा 24x इज़ इक्वल टू 540, तो आपको x मिल जाएगा
540 डिवाइड बाई 24, ठीक है। चलो अगर इसको डिवाइड करते आप तो आपको मिलेगा 2 12 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा और 0। अगेन आप 2 से कट करते हो तो 2 6 ज़ा और 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा, ठीक है। अब ये देखोगे तो 3 से कट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो आपका x कितना आया बेटा? आपका x आ गया 45/2 डिग्री, ठीक है। आपका x कितना आ गया बेटा? 45/2 डिग्री। अब आपको क्या बोला है बेटा? सेकेंड स्मॉलेस्ट। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? 3x और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन होगा? 4x। उसके बाद कौन होगा? 2 बार 5 और सबसे बड़ा कौन होगा? 7x। तो आपको पूछा है सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा 4x, तो उसकी वैल्यू होगी 4 × 45/2, 2 2 ज़ा 4, 45 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सेकेंड स्मॉलेस्ट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, ठीक है। आपको रेड कलर के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अभी देखो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। 3 3 3 3 चारों सेट में होते हैं, 3 क्लब के होते हैं, 3 स्पेड के होते हैं और 3 हार्ट के होते हैं, 3 डायमंड के होते हैं। अब उसमें से रेड कलर का पूछा है, तो रेड कलर में 3 किसके होंगे? स्पेड के, 3 होंगे हार्ट के और रेड कलर का है इसलिए, और 3 होंगे डायमंड के, ठीक है। तो टोटल कितने रेड कलर के फेस कार्ड हुए? 6 फेस कार्ड। और टोटल कितने कार्ड है? टोटल 52 कार्ड्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो आपका फेवरेबल आउटकम 6 होगा और टोटल पॉसिबल होगा 52। तो अगर आप यहाँ पे कैंसलेशन करोगे तो 2 3 ज़ार एंड 2 26 ज़ार, कितना आएगा बेटा? 3/26। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला है अगर 1515/2401 का जो रूट है वो p + 5/49 है तो p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है मैं उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करूँगा। तो ये होगा 2401, 1 × 2401, 2401 + 515, तो ये होगा 2401 + 515 अपॉन 2401 का रूट इज़ इक्वल टू p + 5/49, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा √ 2400 और 500, ये होगा 2900 और 16, तो 2916 अपॉन 2401 इज़ इक्वल टू p + 5/49, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला जो है 2401 ये किसका स्क्वायर होता है? 49 का, ठीक है। आप करके देख सकते हो। एंड ऊपर वाला जो है वो किसका स्क्वायर होगा? 54 का, ठीक है। आप 49 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2401। एंड अगर आप ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो 54 का है, तो अगर आप देखोगे तो 54 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2916। तो आपको ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू मिलेगी 54/49 इज़ इक्वल टू p + 5/49। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा 54/49 - 5/49 इज़ इक्वल टू p, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 49/49 इज़ इक्वल टू p, 49 1 ज़ा, तो आपको मिलेगा p इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? P1 वाला, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 7 √ of 0.03
इंटू 0.3 इंटू ए का जो रूट है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको पहले तो रूट निकालने के लिए इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देना पड़ेगा। तो अगर आप इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, आपको मिलेगा 0.03 इंटू 0.3 इंटू ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 0.003 मतलब कि अभी ये था 10, 100,000, 3/1000 ये पहले था बट उसका स्क्वायर हो गया तो इंटू 3/1000 इंटू ये कितना था बेटा 3/10 तो उसका स्क्वायर हुआ तो 2 बार आ जाएगा 3/10 इंटू रूट बी का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा b, ठीक है। आपको a बाई वी की वैल्यू पूछे तो आप ये जो b है इसको इस साइड डिवीजन में भेज दो a के नीचे, तो आपको मिलेगा a बाई बी इज़ इक्वल टू, ऊपर कितना है बेटा, ऊपर है 3/1000 इंटू 3/1000 इंटू 3/10 इंटू 3/10 होल डिवाइडेड बाय, अब इसके डिवीजन में कौन आने वाला है, ये इसके डिवीजन में आएगा तो ये कितना है, ये है 3/100 और ये है 3/10, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 से 3 कट होने वाला है एंड अगेन एक 3 से एक 3 और कट होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये 10 और 10 कट हो जाएगा और यहाँ पे 100 में से एक 0 इसके साथ कट होगा एंड एक 0 इसके साथ कट होगा। तो अभी कितने बचे, 5 0 बचे हैं। तो ऊपर बचा है 3 3 9 और नीचे बचे हैं 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 0. अगर 9 होता तो एक 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 0 है तो आपको 0.0 ये कितना हुआ 100, ठीक है। 10 100 आपको कितना करना है बेटा, आपको करना है 1 लाख, ठीक है, 5 0 तो 10 100 1000 10,000 और लाख में कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है करेक्ट 0.4 बार 0 और 9, तो 0.4 बार 0 और 9 ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए इसकी करेक्ट चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बोला है कि 729 का क्यूब रूट और 9.261 का क्यूब रूट इक्वल टू n इंटू 0.3, तो आपको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, n, आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट होगा 729 अपॉन, ठीक है, ये होगा 10 100,000, ठीक है, इसका क्यूब रूट और इनटू यहाँ पे क्यूब रूट होगा 9261 और नीचे कितना होगा वापस 10 100,000 इज़ इक्वल टू n इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। चलिए अभी आप नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो 729 होता है, 729 होता है, ये 9 का क्यूब होता है, 981 फिर 729, तो ये हो गया 9/10 इनटू ये जो 9261 होगा आपका, 9261 जो होगा ये किसका क्यूब होगा बेटा, 9261 का। तो अगर आप देखोगे तो ये 21 का क्यूब होगा, 21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441 और 21 का क्यूब ये होता है 9261, ठीक है। तो इनटू यहाँ पे आएगा 21/10 इज़ इक्वल टू n इंटू 3/10, तो यहाँ पे 10 और 10 कट, 3 7 21, तो आपको मिलेगा n इज़ इक्वल टू 9 7 63/10, तो n इज़ इक्वल टू 6.3, ठीक है। आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 6.3। कौन सी चॉइस है आपकी, डी चॉइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है a बाई बी, ठीक है। आपको a बाई बी की वैल्यू गिवन है कितनी, 14/11 एंड अगेन और किसकी वैल्यू दी है बेटा, आपको वैल्यू दी है c बाई डी की कितनी वैल्यू है, 55/49, ठीक है। और क्या पूछा है, आपको ऊपर दिया है 7ac माइनस 2bd और अपॉन में नीचे दिया है 3bd प्लस 5ac, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको पूरे को एक के ही अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 14b/11 एंड अगर आप यहाँ से c की वैल्यू निकालो तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55 टाइम्स d/49, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आपको बोला है 7, ठीक है। a कितना है बेटा, a है आपका 14b, ठीक है, 14b/11 इंटू c की वैल्यू, c को देखते हैं। तो c कितना है 55d/49 माइनस ये b और d हो गया तो यहाँ पे 2bd ही रहने दो, अपॉन यहाँ पे bd ही रहने दो 3bd प्लस 5, a की जगह पे क्या आएगा 14b/11 इंटू c की जगह पे क्या आएगा 55d/49, ठीक है। तो यहाँ पे 11 5 ज़ा 55, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और bd, तो ऊपर आ जाएगा 10bd माइनस 2bd अपॉन, अगर आप नीचे देखते हो तो नीचे देखो यहाँ पे bd था, यहाँ पे भी b और d बचा, तो 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 11 5 ज़ा 55, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आया 5 इंटू 2 10 और 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 50, तो यहाँ पे आएगा 3bd प्लस 5 2 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50 b इंटू डी bd बाई कितना आएगा 7। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर हो जाएगा 10bd माइनस 2bd, ये हो जाएगा 8bd, और नीचे अगर आप देखोगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 प्लस 50 और 21 ये होगा 71 बाई नीचे 7bd, ठीक है। तो ये bd और bd कट जाएगा, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 7/71, तो ये होगा 8 7 ज़ा 56/71, ठीक है। तो आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 56/71, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो क्या दिया है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4000, 2 नंबर्स का जो सम है वो 4000 है। तो अगर आप नंबर्स को x और y लेते हो, ठीक है, तो आपका x प्लस वाई सीधा कितना आ गया बेटा 4000 आ गया। और क्या बोला है 7.5% ऑफ 1, 7.5% ऑफ 1, मतलब पहले वाले का 7.5%, मतलब अगर आप देखोगे तो 77.5% अपॉन 100 ऑफ x, ठीक है। 7.5% ऑफ 1 यानी 7.5/100x इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 12.5%, तो 12.5/100 ऑफ द अनदर, मतलब दूसरे का, यानी दूसरा क्या था y, तो इसका 7.5% और इसका 12.5% दोनों कैसे है इक्वल है, तो 100 से 100 आपका कट हो जाएगा, 25 3 ज़ा 75 और 25 5 ज़ा 125, तो आपको मिलेगा 3x इज़ इक्वल टू 5y, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 5/3y, ठीक है। ये आपको ऊपर पुट कर देनी है, तो x की जगह 5/3y प्लस y इज़ इक्वल टू 4000, अगर आप ऐड करोगे तो ये होगा 5y प्लस 3y अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 4000, 8y/3 इज़ इक्वल टू 4000, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो आपको मिलेगा y इज़ इक्वल टू 500 इंटू 3, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 1500। अब दोनों का सम कितना है 4000, तो x कितना होगा 4000 में से आपको ये वाला नंबर माइनस कर देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2500, ठीक है।
तो x की वैल्यू मिलेगी 2500 और y की वैल्यू मिलेगी 1500। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बोला है फाइंड x, y एंड z इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इस फिगर के अंदर कौन कौन ढूंढना है? तो आपको ढूंढना है x, y और z, तीनों ढूंढने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आपको डायरेक्टली y मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल AED के अंदर तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो आपको मिलेगा 54 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया बेटा? ये एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर आप दोनों का सम करते हो तो 90 और 54, तो ये आएगा 144 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको y मिलेगा 180 माइनस 44, आपको y मिलेगा 180 माइनस 44। ठीक है, 144, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 36 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइंस कैसी है बेटा? पैरेलल है। और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो y और z ये दोनों कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू z, द रीज़न इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, y इक्वल टू z बिकॉज द रीज़न इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y 36 है तो z भी कितना होगा? 36 डिग्री। ठीक है, y 36 डिग्री है तो z भी कितना होगा? 36 डिग्री। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो x प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो x प्लस z की जगह 36 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका x हो जाएगा 180 माइनस 36, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 144 डिग्री। ठीक है, आपके x की वैल्यू हो जाएगी 144 डिग्री। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 36, तो अगर ये 144 तो ये भी 144। आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, बट ये आपके x, y और z की वैल्यूज है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है बेटा? आपको दिया है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग मार्बल्स नंबर्ड 1 to 50। तो बैग के अंदर 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक मार्बल्स है? 50 तक। ठीक है, आगे क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो आपको इसमें से जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स है वो रिमूव कर देना है। तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। ये सारे जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो ये कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको ये जो 7 परफेक्ट स्क्वायर्स है वो टोटल इन 50 में से रिमूव कर देने हैं। तो आपके जो टोटल मार्बल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50 माइनस 7। तो टोटल मार्बल्स हो जाएंगे आपके 50 माइनस 7 यानी कि 43 मार्बल्स। ठीक है, आगे देखते हैं आपको क्या दिया है बेटा। तो आगे आपको दिया है अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है? दैट द नंबर ऑन द मार्बल इज एन ऑड प्राइम नंबर। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो नंबर है वो ऑड भी है और प्राइम भी है। तो सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, तो 2 प्राइम तो है बट ऑड नहीं है, तो सबसे पहला जो ऑड प्राइम होगा वो होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट होगा 5, उसके बाद नेक्स्ट होगा 7, उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, देन 13, 13 के बाद होगा 17, 17 के बाद कौन सा होगा? 19, अगेन 19 के बाद कौन सा होगा? 23 होगा, 23 के बाद कौन सा होगा? 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, 31 के बाद कौन सा होगा बेटा? 37 होगा, 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा होगा? 41, 41 के बाद कौन सा होगा? 43 और 43 के बाद होगा
47। तो देख लेते टोटल कितने प्राइम नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल ऑड प्राइम नंबर्स कितने हैं बेटा, 14। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 14। और आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 43। ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हो जाएगी 14/43। क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट लीस्ट नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 231525 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये होगा 231525, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 3 और 1 तो 5 6 ज़ा 30, 1 5 तो 5 3 ज़ा 15, 0 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करता हूँ, 5 9 ज़ा 45, 1 3 5 2 ज़ा 10, 6 ज़ा 30। ठीक है, आपको क्या मिला बेटा, 9261। क्या मिला बेटा आपको, 9261। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 9261 एक परफेक्ट क्यूब होता है, किसका होता है, तो ये 21 का होता है। बट अगर आप चाहो तो अभी डायरेक्टली नहीं याद है आपको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 3 से किया तो 3 3 ज़ा 9, अभी नहीं हो रहा है तो 0, फिर 3 8 ज़ा 24 और 21 तो 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से किया तो 3 1 ज़ा 3, 0 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से किया तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 343 7 का क्यूब है तो 7 49 7 7 और 7 1। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हो तो 7 3 बार है, 3 भी 3 बार है, 5 2 बार ही है। तो 231525 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब एंड 7 का भी क्यूब। ठीक है, आपको पूछा है कि अगर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो 7 3 ज़ा 21 इंटू 5, 21 5 ज़ा 105। तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कब, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे पहले तो x इक्वल टू दिया है तो आपको पहले x की वैल्यू ढूंढनी है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 1 -7, तो अगर आप 1 - 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 - 7 आएगा -6, और -6 - 2 किया तो ये आएगा -8। ठीक है, तो अभी आपका जो है वो बन गया 1 - 1/8 और वो भी आगे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आएगा 1 + 1/8, तो नीचे आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है बेटा, अब आपके पास 1/8 जब 1 में प्लस हुआ तो 1 + 1/8 9/8 आया। अब ये 1 के अपॉन में 9/8 है तो 1/9/8 ये हो जाएगा 8/9। अब आपको अगेन करना है 1 + 8/9, तो अगर आप 1 + 8/9 करते हो तो 9 1 ज़ा 9 + 8, 9 + 8 हो जाएगा आपका 17/9, तो इधर आएगा 17/9। और जब आप 1/17/9 करते हो तो वो हो जाएगा 9/17। जब आप 1 - 9/17 करते हो, 1 - 9/17, तो ये 17 1 ज़ा 17 -9, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8/17। तो इस पूरे का आंसर आएगा 8/17। और जब 1/8/17 करोगे तो हो जाएगा 17/8। तो 1 + 17/8, तो आपको मिलेगा, ये x की वैल्यू है तो आपको x मिल जाएगा 8 1 ज़ा 8 + 17, x हो जाएगा 25/। आपको x की कितनी वैल्यू मिल रही बेटा, x हो गया 25/8।
ठीक है। अब 1/x, तो 1/x होगा 8/25 और x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 8 का 64, ठीक है। तो अभी आपको 1/x माइनस एक्स स्क्वायर करना है, तो ये होगा 1/x मतलब 8/25 माइनस एक्स स्क्वायर 625/64, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 64 × 8 करोगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है बेटा 512, माइनस अगर आप 625 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लो 625 × 25, 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50 और 12 62, 25 6 ज़ा 150 और 6 156, तो माइनस 15625 और अपॉन में कितना आएगा, तो अपॉन में ये 8 × 64 512 माइनस 25 × 625 15625, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा 25 × 64, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन देखते हो तो 15625 में से आपको 512 माइनस करना है, तो माइनस 512, तो ये 3 आ गया 1 आ गया 1, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर माइनस 15113 और नीचे जब आप 25 × 64 करते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 100। तब आपको इसको डिवाइड बाय 4 करना है, तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 करते हो तो ये हो जाएगा 16। तो 100 × 16, 25 × 64 आप ऐसा समझ सकते हो 50 × 32 और 100 × 16, तो नीचे आ जाएगा 1600, ठीक है। तो आपकी इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है बेटा -15113 अपॉन 1600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपको क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला हुआ है कि 2x + q, अब ये इक्वल टू ये है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p + q इज़ इक्वल टू 2x - q इंटू p - q, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व फॉर x, तो ये होगा 2x × p 2xp प्लस 2x × q 2xq, ठीक है, प्लस p × q प्लस pq और प्लस q × q प्लस q स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x × p 2xp 2x × q, वो माइनस में होगा तो माइनस 2xq। नेक्स्ट देखते हैं, तो माइनस p × q माइनस pq और माइनस माइनस प्लस q × q q स्क्वायर, कौन से टर्म सेम है वो कट जाएंगे, 2xp कट प्लस q स्क्वायर कट, ये दोनों टर्म्स इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2xq प्लस 2xq 2xq प्लस 2xq प्लस pq है और ये माइनस pq इधर आएगा तो प्लस pq इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 4xq प्लस 2pq इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको देखना है बेटा क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2q कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और 2q कॉमन निकाला तो 2 गया तो 2 बचा और q गया तो x बचा, प्लस इधर से 2q गया 2 भी गया q भी गया तो अंदर बचा p इज़ इक्वल टू 0। दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट 0 तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो आपको मिलेगा 2x प्लस p इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू माइनस p, x इज़ इक्वल टू माइनस p बाई, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा -p/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आपको बोला है इफ़ ट्वाइस द सम ऑफ द ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इफ़ 2 टाइम्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 13 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, तो अगर आपको पता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स,
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर n साइड्स है, ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर n साइड्स है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो टू टाइम्स द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री इज मतलब इक्वल टू 13 टाइम्स, मतलब 13 इंटू इट्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम, तो एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है आपके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो कितना होता है बेटा 360 डिग्री। हमेशा सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 180 इंटू 2, 18 2 ज़ा 36 और 360 कट जाएगा, आपको मिलेगा n-2 इज़ इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली n मिल गया, कितना वैल्यू था बेटा इसका 15। खाली क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब क्यूब रूट किसका है, तो क्यूब रूट है 24.389 इंटू 125/1000। तो आप 24.389 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 24.389 का होगा 24389/1000। तो वो जो 1000 है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ और इंटू ये 1000, ठीक है। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट मतलब रेज़ टू 1/3। तो अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपको हर एक नंबर का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ का डायरेक्टली पता होगा, जैसे 125 का 5 हो जाएगा, 1000 का 10 होगा, ये 1000 का भी 10 हो जाएगा। तो अब आपको किसका फाइंड करना है, सिर्फ आपको फाइंड करना है 24389, ठीक है। अब क्यूब रूट है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर पीछे 9 है तो वो किसके क्यूब में आएगा। तो 9 तब आता है जब पीछे 9 हो, तभी किसी के क्यूब में 9 आता है, ठीक है। जैसे 7 में तो 3 आता है बट 9 में ही 9 आता है और 1 में ही 1 आता है। तो अभी यहाँ पे पीछे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जैसे कि अभी 29 का जो क्यूब है वो चेक करना है 24389 है या नहीं। तो पहले 29 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो ये होगा 9 9 ज़ार 81, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होगा बेटा, 18 और 8 होगा 26। फिर 0, ये होगा 9 2 ज़ार 18, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो 1 8 और 6 14, ठीक है, और 7 5 प्लस 2 7 और 1 8। तो आपके 29 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा बेटा 841। अगर आप उसको वापस 29 से करोगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72 और 3 75। अब 0 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 9 8 8 और 5 13, ठीक है, 7 8 14 और 2 24389। आपको पता चल गया बेटा किसका क्यूब है 29 का, ठीक है। तो ये किसका है 29 का। तो अब जब क्यूब रूट होगा तो सभी नंबर्स का आपको क्यूब रूट कर देना है। तो ये आएगा 29 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10, ठीक है। तो आप 5 2 ज़ा 10 कर सकते हो। तो ये ऊपर आ गया 29 और नीचे आ गया 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो अगर आप इसका क्यूब रूट फाइंड करते हो तो 29/20 आ जाता है, ठीक है। और अगर आप कट करते हो 2 से तो यहाँ पे 10 आएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा, 2 4 ज़ा 8 आएगा, ठीक है, और 14.5 आएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 8936
टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप 8, 9, 3, 6 में क्या ऐड करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8, 9, 3, 6 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा 8, 9, 3 और 6। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो की पेयर बनानी है। तो पहला मैं 89 का और दूसरा बनाऊंगा 36 का। अब पहला 89 है तो मुझे इससे छोटा वाला जो नंबर है जिसका स्क्वायर 89 या उससे छोटा है वो ढूंढना है। तो आपका जो नंबर होगा वो होगा 9। क्यों? क्योंकि 9 का जो स्क्वायर है वो 81 से कम होता है। तो 9 9s are 81। ठीक है, इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 89 में से अगर 81 माइनस होता है तो यहाँ पे 8 आएगा और ये 36 नीचे कैरी डाउन हो जाएगा। आपको ये 9 यहाँ पे लिखना है वापस, और 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। अब आपको यहाँ पे एक नंबर फिल करना है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये नंबर का प्रोडक्ट इसके साथ 836 से कम होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको 180 राउंड फिगर कंसीडर करते हो तो 180 × 3 करोगे तो 18 3 54 और 18 4 72, यानी 720 और 18 5 तो 90 होता है। तो अगर 5 दोनों जगह लोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 184 × 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट देख लेते हैं 184 × 4। तो अगर आप देखोगे 184 × 4 तो ये होगा 4 4 16, 4 8 32 और 133, 4 1 4 7। तो 184 × 4 कितना आ रहा है बेटा 736। अगर आप इसको माइनस करते हो तो क्या आंसर आ रहा है 100 आ रहा है। मतलब 94 के स्क्वायर से ये जो नंबर है 8936 वो कितना बड़ा है 100 बड़ा है। अगर आप इसके अंदर से 100 माइनस करोगे तब जाके ये क्या होगा 94 का स्क्वायर होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 94 का जो स्क्वायर है वो किससे कम है, वो कम है 8936 से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नेक्स्ट स्क्वायर, ठीक है, वो कौन सा होगा बेटा, तो नेक्स्ट स्क्वायर होगा 94 के बाद 95। ठीक है, तो आपको क्या करना है 95 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 95 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 5 5 25, 9 5 45 और 2 47, 0 9 5 45, 9 9 81 और 4 85। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7 और 5 12, 5 4 9 और 1 10 और तो आपका जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो आता है 9025। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो आता है 9025। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 9025 में से 8936 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो जाएगा 9 का 8 और 0 का 10, अगेन 10 का 9, 2 का 12, 2 का अगेन 11 और 5 का 15, 15 माइनस 6 9 और 11 माइनस 3 8। तो अगर आप 8936 के अंदर 89 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 9025 नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है 95 का। ठीक है, तो आपको क्या ऐड करना है बेटा 89 मस्ट बी एडेड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट आपको बोला है सॉल्व फॉर z। आपको क्या करना है, आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप ये जो z की वैल्यू है यहाँ पे वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 4/9 है, ब्रैकेट में 6z माइनस 1 है, माइनस अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 11 6 66z माइनस यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में बेटा 4z माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में कितना है 6 है। ठीक है, 66z माइनस 4z माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 172/18। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो इसको 4/9 और 6z माइनस 1
और यहाँ पे माइनस ये 6 को मैं 1/6 लिख देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, तो 66 माइनस 4 62z और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, -1/6 62z प्लस 1/6 इज इक्वल टू -172/18, ठीक है। 18 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का बेस 18 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 4 8 इंटू 6z माइनस 1 माइनस 3 1 3 इंटू 62z प्लस 1 इज़ इक्वल टू -172/18। ये 18 और 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा 8 6 48z माइनस 8 1 8, ठीक है, माइनस 62 इंटू 3, तो 62 इंटू 3 तो ये होगा 60 का 180 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा -186z, ठीक है, और -1 इंटू 3 -3 इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा -172, ठीक है। 48 माइनस 186, तो अगर आप 186 में से 48 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 7 कर दो, इसका 16 कर दो, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आपको मिलेगा -138z, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, -8 माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू -172, -11 इधर आएगा तो +11 हो जाएगा, तो -138z इज़ इक्वल टू -172 में 11 प्लस होगा तो ये होगा -161, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको जो z की वैल्यू मिलेगी वो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा 161/138, ठीक है। आपको जो z की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो आपको मिल रही है 161, ठीक है, और अपॉन में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 138। आप ट्राई कर सकते हो इसको 7 से कट करने का, तो ऊपर न्यूमरेटर तो हो जाएगा, बट अगर आप डिनोमिनेटर को कट करने का ट्राई करोगे तो वो नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही फाइनल छोड़ देते हैं। कितना हो रहा है बेटा, 161/138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है 3 टाइम्स एंगल B इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल C। तो आपका जो एंगल B है वो कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स एंगल C, ठीक है। आपका जो एंगल B है वो हो जाएगा 2/3 टाइम्स एंगल C। और आपको बोला है एंगल A इस टू एंगल E इस टू एंगल D, ये कितना है 3:4:3। तो आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेशियोज़ को x ले लेता हूँ। लेट द रेशियोज़ बी x, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, रेशियोज़ को x ले लिया, तो आपका एंगल A ये हो जाएगा 3x, फिर एंगल E ये हो जाएगा 4x और एंगल D ये हो जाएगा 3x, ठीक है। एंगल A 3x, एंगल E 4x और एंगल D 3x, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करने हैं एंगल्स को, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका ये जो है वो क्या है बेटा, वो पेंटागन है। तो उसकी जो सारे साइड्स होंगे 1 2 3 4 5 पेंटागन है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री में अगर आप n की जगह 5 रखोगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 18 3 54। कितना सम आता है बेटा पेंटागन का, 540 डिग्री। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा बेटा, तो इन सभी एंगल्स का सम हो जाएगा 540 डिग्री। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके हो जाएंगे
कंजिक्यूटिव इंटीरियर मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो एंगल बी, नेक्स्ट एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब बी की जगह पे मैं बी ही रहने देता हूँ, या तो बी की जगह पे मैं रख देता हूँ 2/3 टाइम्स एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 1 जा 3, तो 2 टाइम्स एंगल सी प्लस 3 टाइम्स एंगल सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 + 3 आपको मिलेगा 5 टाइम्स एंगल सी बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये होगा 5 3 जा 15, 3 0, 5 6 जा 30, 36 3 जा आपको मिलेगा एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 108 डिग्री। कितनी आ गई बेटा एंगल सी की वैल्यू, 108 डिग्री। तो आप यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो एंगल बी होगा 2/3 इंटू 108, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 6 जा 18, तो आपको एंगल बी मिल जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। आपको एंगल बी मिल जाएगा 72 और ये 108। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये दोनों एंगल्स मिला के कितने हो चुके हैं, यही 180 हो चुका है, और टोटल कितना है 540। तो ये तीनों मिला के 540 में से 180 निकालो तो आपके ये तीनों एंगल्स मिला के कितने होने चाहिए बेटा, 360 डिग्री। तो मैं वही आगे कंटिन्यू करूँगा कि A प्लस E प्लस D, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D ये कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। चलो एंगल A कितना है 3x, E कितना है 4x और D कितना है 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 7 और 3 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अगर आपने x की जगह 36 डाला तो आपको 3 इंटू 36 एंगल A मिल जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। एंगल E मिलेगा 36 इंटू 4, तो 36 का डबल 72 का डबल 144 डिग्री, और आपको मिलेगा एंगल D जो है 3x, तो 36 3 जा 108 डिग्री, ठीक है। तो आपको AB कितना मिला 108 डिग्री, DB कितना मिला 108 डिग्री और E कितना मिला 144 डिग्री। तो आपने एक एक करके सारे एंगल्स ढूंढ लिए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2820। दो नंबर्स है x और y और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2820। x और y है, दोनों का प्रोडक्ट है 2820 एंड देयर रेशियोज x बाई y इज इक्वल टू 47/15। दो नंबर्स का प्रोडक्ट x और y का 2820 है और उसका रेशियो x बाई y कितना है 47/15। आपको उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 47/15 इंटू वाई। ये वैल्यू आप यहाँ पे सीधा पुट कर सकते हो। x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 47/15 y इंटू वाई इज इक्वल टू 2820, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 47 को 2820 से कट करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47, 7 6 जा 42 होता है, तो 47 इंटू 6 करके देख लेते हैं आपने। तो 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 282 होता है ना बेटा। तो 47 6 जा 282 और 0, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 इंटू 15। तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 6 जा 90, तो 900, तो y आ जाएगा 30। तो बेटा आपको y कितना मिल चुका है 30। तो आपको x कितना मिलेगा 47/15 इंटू 30, 15 2 जा 30, तो x आपका आएगा 47 2 जा
94, ठीक है। तो ये थी आपकी x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको क्या बोला है, आपको बोला है इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 7:5:6। आपके क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस है उसका रेशियो क्या है, 7, 5 और 6। तो अगर आप इसको x ले लेते हो, लेट द रेशियोज बी x। मैंने क्या किया है बेटा, रेशियोज को x ले लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 7x, 5x एंड 6x, ठीक है। मैंने रेशियोज को x ले लिया है, तो ये हो गया 7x, 5x और 6x। ये क्या हो गया, मेरा क्यूबॉइड का डायमेंशन हो चुका है। और इसकी वॉल्यूम कितनी दी है मुझे, 107520। आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है बेटा, तो ये होता है 2 लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर मैं यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 7, आपका वॉल्यूम हो जाएगा 7x इंटू 5x इंटू 6x, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30 और 3 7 21। तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा 210 टाइम्स x क्यूब। बट आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, तो आप बोल सकते हो 107520 इज़ इक्वल टू 210x क्यूब। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको अगर आप कट करते हो तो 3 7 21, 3 3 9, 1 7, 3 5 15, 2 5, तो 3 8 24, 3 4 12। अब आप इसको 7 से कट करोगे तो 7 5 35, 7 1 7, 7 2 14। तो आपका x क्यूब आएगा 512 जो होता है 8 का क्यूब। तो आपको x कितना मिलेगा बेटा, 8, ठीक है। और सेंटीमीटर होगा इसका यूनिट, ठीक है। तो आपकी जो साइड्स आएगी वो आएगी 7x मतलब 7 इंटू 8 विच इज़ 56 सेंटीमीटर। दूसरी जो साइड है आपकी वो है 5x, ठीक है। तो वो होगा 5 इंटू 8, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और थर्ड होगा 6x मतलब कि 6 इंटू 8, 6 8 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों साइड्स मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।